غور مسلمانوں چینی مظالم کے حوالے سے اقوام متحدہ کی رپورٹ طویل انتظار کے بعد بالآخر منظر عام پر آ گئی۔ رپورٹ میں چین کے ممکنہ طور پر انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ 48 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں سکیونگ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کی بات بھی کہی گئی ہے۔ دیکھیے رپورٹ۔ چین کا چہرہ بار بار دنیا کے سامنے بے نقاب ہوتا رہا ہے۔ اب اقوام متحدہ کی طرف سے جاری کی گئی رپورٹ پہ ایک بار پھر چین کی سچائی سامنے آئی ہے۔ دراصل رپورٹ میں چین کے سنکیانگ صوبے میں ایغور مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسے انسانیت کے خلاف گھناؤنا جرم قرار دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا، جو بالآخر جنیوا میں جاری کر دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے یہ رپورٹ اس وقت جاری کی جب اقوام متحدہ انسانی حقوق کمیشن کی سربراہ مشیل بیچلیٹ کی 4 سالہ مدت کار ختم ہونے میں صرف 13 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ مشیل بیچلیٹ پر ماضی میں چین کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے کے الزامات عائد ہوتے رہے ہیں، تاہم انہوں نے اس رپورٹ کو جاری نہ کرنے کی چین کی اپیل مسترد کر دی۔ اس رپورٹ کو جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسے عوام کے سامنے لانا ضروری ہے۔ چین کی جانب سے اس رپورٹ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ I am relieved that this report was out, finally out. We know the pressure from the Chinese government, how they tried to whitewash by inviting Madam Bachelet to China and showing her completely different scenes. But despite all this, even though it was delayed to the last minute, but it is a slap on Chinese government's face to release this report. And from the reaction by the Chinese government, we could see this is a big deal. This is a big deal. اقوام متحدہ نے باوثوق اطلاعات کی بنیاد پر رپورٹ میں کہا کہ ایغور عوام کو تفریق آمیز قید و بند اور اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ چین کا یہ تفریق آمیز سلوک انسانیت کے خلاف جرائم کے مترادف ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سنکیانگ میں ایغور اور مسلم گروپوں کے دیگر افراد کو 2017 سے 2019 تک اور ممکنہ طور پر اس کے بعد بھی ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے۔ ان افراد کے ساتھ اذیت یا غلط سلوک بشمول جبراً طبی علاج اور ناگفتہ بہ حالات میں قید میں رکھنے کے الزامات درست ہیں۔ While I was reading the report last night after midnight, I can't stop my tears. I believe most of Uyghurs who read the report had the kind of same reaction. In the end, we all, we have been suffering for so long. Majority of us don't know what happened to our families. چین نے تاہم ان الزامات کو مغربی طاقتوں کی جانب سے جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہوئے رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ چین کا کہنا ہے کہ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ سنکیانگ کے من گھڑت مسئلے کے پیچھے سیاسی محرکات ہیں، جن کا مقصد چین کے استحکام کو نقصان پہنچانا اور اس کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنا ہے۔ 报告是虚假信息的大杂烩，是服务美西方以疆制华战略的政治工具。人权高专办基于境外一些反华势力的政治图谋杜撰报告，严重违反高专办职责，严重违背普遍、客观、非选择性、非政治化原则。再次证明，人权高专办已经沦为美西方整治广大发展中国家的打手和帮凶。 انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں اور امریکہ کی حکومت بیجنگ پر ایغور مسلم اقلیت کے خلاف سنگین زیادتیوں کا الزام لگاتے ہیں، جن میں تشدد، جبری نسبندی، جنسی استحصال اور بچوں کو جبری طور پر علیحدہ کرنا شامل ہے۔ سنکیانگ میں تقریباً 1,20,00,000 ایغور ہیں، ان میں بیشتر مسلمان ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی تفریق آمیز سلوک کیا جاتا ہو۔ ماضی میں بعض ممالک سنکیانگ میں چین کے اقدامات کو
नस्ल कुशी करार दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट के बाद युगोर मुहाजिरीन ने आलमी बरादरी से चीन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। युगोर मुसलमानों के लिए हकूक़ की मुहिम चलाने वालों ने इस रिपोर्ट को गेम चेंजर करार दिया। 60 से ज़ायद ग्रुपों के दस्तखत करदा एक बयान में मुहिम चलाने वालों ने कहा कि इंसानी हकूक़ के आलमी इदारे की रिपोर्ट में इन ज़्यादतियों की तस्दीक की गई है जो इंसानी हकूक़ के ग्रुप ने बरसों कबल रिपोर्ट्स किए हैं। वर्ल्ड युगोर कांग्रेस के सदर डोल्कुन ईसा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट इंतहाई अहम है। ये रुकन ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों और कारोबारी बरादरी के बामाने और ठोस इक़दाम की राह हमवार करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब वक्त है कि चीन का एहतसाब शुरू किया जाए। युगोर मुसलमानों की हालत ज़ार पर जारी रिपोर्ट पर सारी दुनिया से रद्द अमल सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक DGP SP वेद ने उनका कहना है कि रिपोर्ट ने चीन की पोल खोल दी है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में SP वेद ने कहा कि मुस्लिम मुल्कों के लिए चीन के खिलाफ खड़े होने का यही वक्त है। डॉक्टर SP वेद का कहना है कि युगोर मामले पर पाकिस्तान का दोहरा मयार काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि चीन को आलमी प्लेटफॉर्म पर बेनकाब और अलग थलग करने के लिए हिंदुस्तान को तमाम सिफारती ज़राए का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या लिखा है आपने यूएन रिपोर्ट में, क्या लिखा है और किस तरह ये एक्सपोज कर रहा है पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री? देखिए, जो यूएन ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट आई, उनकी जो कमेटी थी उसकी रिपोर्ट कल रात को ही रिलीज हुई है। उसके मुताबिक जो जिनजियांग प्रोविंस है चाइना का, जहां उइगर मुस्लिम्स रहते हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे ऐसे कार्रवाइयां चाइना ने की हैं जो जिसको टर्म किया है इस कमेटी ने, यूएन कमीशन कमेटी ने, कि दीज आर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, दीज आर इंटरनेशनल क्राइम्स। मतलब उनको जबरन उनके रिलीजियस प्लेसेस को डिमोलिश किया गया, उनको वहाँ डिटेंशन की गई बिना वारंट के, बिना लॉफुल सिस्टम के, उनके खिलाफ ह्यूमन राइट वायलेशंस की हैं बहुत सारी। तो इस तरह की बहुत सारी ज्यादतियों का जिक्र है उस यूएन कमीशन रिपोर्ट में, और उसमें उन्होंने कहा है, रिक्वेस्ट किया है मेंबर स्टेट से, जितने भी यूएन की हैं, कि इसमें चाइना के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। चाहे वो इंटरनेशनल बिजनेस हाउसेज हैं, उनको देखना चाहिए कि यहाँ एक लार्ज स्केल पे, मास स्केल पे ह्यूमन राइट वायलेशन किसी कम्युनिटी के खिलाफ हो रही है, तो उनके बिजनेसेस को इस पे क्या एक्शन चाइना के खिलाफ लेना चाहिए, उनको वहां से विड्रॉ करना चाहिए। बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज को चाइना को बाइकआउट करना चाहिए। बहुत सारे आई थिंक जो मेंबर स्टेट्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल्स की, जैसे 4 और मेंबर हैं परमानेंट और 10 दूसरे मेंबर हैं, उनको चाइना को बाइकआउट करना चाहिए और डिप्लोमेटिक रिलेशन इसके साथ काटने चाहिए। इसी तरह जो जनरल असेंबली के मेंबर हैं लगभग 200, उनको भी चाइना के साथ बाइकआउट करना चाहिए। ये उसका रिपोर्ट का असर मुझे लगता होना है। चाइना की जब बात आती है तो इनकी बोलती बंद हो जाती है, इनके मुंह से कुछ नहीं निकलता है, क्योंकि चाइना एक इंटरनेशनल बुली है, ये उससे सब डरते हैं। चाहे वो पाकिस्तान उनकी एक टेरिटरी बन के रह गई है चाइना की, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं बनती चाइना के खिलाफ बोलेगा। इसी तरह इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक कंट्रीज चाइना के खिलाफ मुंह नहीं खोलते हैं, तो उन सब की बोलती बंद हो जाती जब चाइना की बात होती है। इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे में 2 मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाई करते हुए 2 फलस्तीनियों को गोली मारी, जिसके नतीजे में दोनों की मौत वाक़ई हुई है। फलस्तीनी वजारत सेहत और सरकारी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक इन अफराद की शनाख्त नाबल्स के अल आइन पनाह गजीन कैंप से ताल्लुक़ रखने वाले 25 साला समर खालिद और रुमला के जनूब में वाक़ उम्म अल शराइत में 26 साला इजान
अफानिया के नाम से हुई है। खालिद उस वक्त जा बहक हुए जब इसराइली फौज इलाके में छापामार कार्रवाई के लिए पहुंची। उस दौरान झड़प का वाकया पेश आया था। इसराइली फौज ने इस हलाकत पर कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन कहा है कि उसकी अफवाज ने कैंप में ऑपरेशन लॉन्च किया और मतलूब मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है। फलस्तीनी वजारत सेहत ने कहा कि इन हलाकतों से साल के आगाज से मकबूजा मगरबी किनारे और गजा की पट्टी में इसराइली फौज के हाथों हलाक होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 140 हो गई है। वहीं फलस्तीनियों पर इसराइली जारहियत से दिलबर्दाश्ता गूगल की एक हाई प्रोफाइल मुलाजमा ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। एरियल, जो एक मार्केटिंग मैनेजर हैं, उन्होंने कहा कि वो इस हफ्ते कंपनी छोड़ देंगी। उनका कहना है कि उनकी समाजी सरगर्मियों की वजह से उनके तई एक मुखालिफ माहौल पैदा हो गया है। ये तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब कोरेन ने प्रोजेक्ट निम्बस नामी एक प्रोग्राम पर अमेज़न और इसराइली फौज के साथ गूगल के $1.2 बिलियन के ताउन पर एहतजाज किया। उन्होंने गूगल को मुआहदे से दस्तबरदार होने के लिए कई तरह की सरगर्मियां अंजाम दी। कोरेन ने कहा कि उनके खदशात को सुनने के बजाय गूगल ने नवंबर 2021 में एक अल्टीमेटम के साथ उनके खदशात से सर्फ नजरी कर ली। उन्हें ट्रांसफर लेने या मुलाजमत छोड़ने का ऑप्शन दिया गया, जिसके बाद उन्होंने फलस्तीनियों की हिमायत में अपनी जॉब छोड़ दी। जनूबी इराकी शहर बसरा में हरीफ शिया मुस्लिम जंगजुओं के दरमियान रात भर होने वालों झड़पों में 4 अफराद हलाक हो गए। मकामी सिक्योरिटी हुकाम ने बताया कि बगदाद में इस हफ्ते के शुरू में होने वाली झड़पों में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 30 हो गई है। सिक्योरिटी हुकाम ने बताया कि ये झड़पें जो जुमेरात की सुबह तक जारी रहीं, इराक के तेल पैदा करने वाले अहम मरकज बसरा में हुई। मुसल्लह झड़पें इराक के जारी सियासी बहरान के ताज़ा तरीन सिलसिलों के बाद शिया मजहबी रहनुमा मुक़्तदा असद्र की जानिब से सियासत दस्तबरदारी के ऐलान के बाद हुई है। इस लड़ाई ने खाना जंगी में इजाफे का खदशा पैदा कर दिया है। मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक की अहलिया पर करप्शन के इल्ज़ामात साबित हो गए। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक कोलंबोर हाई कोर्ट ने मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक की अहलिया रोस्मा मंसूर को रिश्वत सतानी का मुजरिम करार दे दिया है। मलेशिया की साबिक खातून अव्वल को रिश्वत सतानी के 3 इल्ज़ामात में मुजरिम करार दिया गया है। उन पर शमसी तवन्नाई के मंसूबे में $4 करोड़ 20 लाख रिश्वत लेने के इल्जामात है। साबिक खातून अव्वल रोस्मा मंसूर अपने शौहर के दौरे इक़्तिदार में अपने शाहाना तर्ज जिंदगी से मशहूर हुई थी। वाज़ेह है कि मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक भी करप्शन के इल्जामात पर जेल में 12 साल कैद की सजा भुगत रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA यूक्रेन में ज़ेपोरिज़िया पहुंची और इस मकामा के दौरे का मकसद जौहरी प्लांट की हिफाजत और सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ सरगर्मियां अंजाम है। जुमेरात को प्लांट पहुंचने से पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ अक़वाम मुत्तहिदा के न्यूक्लियर वॉच डॉग राफेल ग्रोसी ने सहाफ़ियों को बताया कि टीम मौजूदा सूरत हाल से आगाह है। Tell you what the situation is and what we are going to do. All right? Very good. So we are moving. We are aware of the current situation. There has been increased military activity, including this morning. Until very recently, a few minutes ago, I have been briefed by the Ukrainian regional military commander here about that and the inherent risks. But weighing the pros and cons. मशक़ी रूस में वोस्टॉक 2022 फौजी मशक़ों का आगाज़ हो गया है। ये मशक़ दरअसल मॉस्को और बीजिंग के दरमियान बढ़ते हुए करीबी दिफाई ताल्लुकात का मुज़ाहरा है। इसमें कई साबिक़ सोवियत ममालिक के अलावा चीन, हिंदुस्तान, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ और शाम के 50,000 से ज़्यादा फ़ौजी जवान शामिल होंगे। अमरीका ने इस मशक़ पर तशवीश का इजहार किया है। देखिए रिपोर्ट। मशरिकी रूस में वुस्टोक 2022 फौजी मशकों की इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद की गई, जो कि यूक्रेन में क्रेमलिन की कार्रवाई पर मगरिब के साथ कशीदगी के दरमियान मॉस्को और बीजिंग के दरमियान बढ़ते हुए करीबी दिफाई ताल्लुकात का मुजाहरा है। रूसी वजारत दिफा ने कहा कि ये मशक़ें 1 से 7 सितंबर को रूस के मशरिक और बहरे जापान के मुख्तलिफ मकामात पर होंगी और इसमें 50,000 से ज्यादा फौजी जवान शामिल होंगे। इसके अलावा 5,000 हथियारों की यूनिट को भी शामिल किया गया है, जिनमें 140 तैयारे और 60 जंगी जहाज हैं। ये मशक़ें मशरिकी रूस के 7 फायर रेंजर्स पर की जाएंगी और उसमें कई साबिक़ सोवियत ममालिक के अलावा चीन, हिंदुस्तान, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ और शाम के फौजी शामिल होंगे। वजारत ने कहा कि रूसी फजाइया के दस्ते तवील फासले तक मार गिराने वाले बम्बर्स और फौजी कार्गो तैयारे दीगर अफवाज के साथ मशकों में हिस्सा लेंगे। गुज़श्ता माह मशक का ऐलान करते हुए रूसी फौज ने इस बात पर जोर दिया कि यह मंसूबाबंद जंगी तरबियत का हिस्सा है जो यूक्रेन में मॉस्को की फौजी कार्रवाइयों के बावजूद जारी है। वहीं रूस की फौजी मशक में चीन की शमूलियत पर अमेरिका ने तशवीश का इजहार किया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि रूस के साथ मशक़ें करने वाला कोई भी मुल्क अमेरिका के लिए तशवीशनाक है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ बिला इश्तियाल जंग छेड़ रखी है, लेकिन हर शरीक मुल्क को इसका फैसला खुद करना होगा। ये फौजी मशक अपने वक्त के हवाले से बैनुल-अक़वामी सतह पर ज़ेर बहस है। यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस के मगरिब और जापान के साथ ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। ताहम चीन की वजारत दिफा ने पहले ही कहा था कि मशक में इसकी शिरकत का मौजूदा बैनुल-अक़वामी और इलाकाई सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने बुध के रोज अपने इदारिये में कहा कि अमेरिका ने चीन और रूस के दरमियान ताउन की मजम्मत की और उसे नुकसान पहुंचाया। अखबार ने यह भी कहा कि अमेरिका ने रूस के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को एक नए जुर्म में बदलने की कोशिश की है। मजमून में कहा गया कि चीन को अमेरिका की हिदायत पर अमल करने की जरूरत नहीं है। चीन ने कहा कि ये उसका हक है कि वो अपनी सिक्योरिटी जरूरियात और तरबियती इंतजामात के मुताबिक फौजी मशक़ें कब, कहां और किसके साथ मुनक़िद करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
सूडान में सैलाब से तबाही का सिलसिला जारी है। तूफानी बारिशों के नतीजे में 100 से ज़ायद अफराद हलाक और हज़ारों मुतासिर हुए हैं। हुकाम ने मुल्क के सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबों में से 6 में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता बराए इंसानी उमूर ने कहा कि 18 में से 15 सूबों में सैलाब से कम अज़ कम 3 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। सूडान में हर साल जून और अक्टूबर के दरमियान शदीद बारिशें होती हैं। गुज़िश्ता साल सूडान में तूफ़ानी बारिशों से 80 से ज़ायद अफराद हलाक और हज़ारों घर पानी में डूब गए थे। देर असना 2020 में तकरीबन 8 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हुए थे। खातून मजिस्ट्रेट और आला पुलिस अफसरान को धमकियां देने से मुतल्लिक़ केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अबूरी जमानत में तौसी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने इमरान खान के पेश होने पर उनकी अबूरी जमानत में तौसी की दरख्वास्त 12 सितंबर तक मंजूर करते हुए उन्हें 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया। ताज़ा तरीन पेशरफ्त को खान के लिए एक और बड़ी राहत है, क्योंकि अदालती हुक्म उन इल्ज़ामात पर गिरफ्तारी से मौसर तरीके से बचाता है कि गुज़िश्ता माह एक रैली में अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने पुलिस और एक खातून जज को धमकियां दी। Because of this malafide and an act of with ulterior considerations, they have added some few more sections therein. The next date has been fixed for the final arguments. Islamabad High Court has issued notices to the state where this FIR has been challenged by our legal team, saying that it is not at all a case of terrorism, which in fact this would be the first ever FIR registered against any person, what to call of the former Prime Minister, any person under these sections. एक रेस्क्यू बहरी जहाज को चलाने वाली एक NGO ने बताया कि गुज़िश्ता चंद दिनों में बहरिया रोम को अबूर करने की कोशिश के दौरान 400 से ज़ायद तारिकीन वतन को बचा लिया गया है। NGO SOS मेडिटेरियन के मुताबिक ओशन वेकिंग ने वस्ती बहरियाए रोम में सफ़र करते हुए 25 से 27 अगस्त के दरमियान 10 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 466 तारिकीन वतन को बचा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल अक़वामी इदारे बराए हिजरत के मुताबिक इसी अरसे के दौरान शुमाली अफ्रीका से यूरोप जाने की कोशिश के दौरान 183 अफराद हलाक या लापता हो गए हैं। मुलाजमत के मकसद से उम्मीदवारों को कुवैत स्मगल करने के लिए गैर कानूनी फिंगर प्रिंट सर्जरी में मुलविस एक गैंग का पर्दाफाश हुआ है। रचाकुंडा के मलकाजगिरी जोन की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने गैंगस्टर पुलिस के हमरा मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गिरोह के 4 अफराद को गिरफ्तार किया। गैंग के 2 अरकान जिन्होंने कुवैत में दोबारा दाखिले के लिए गैर कानूनी सर्जरी की थी, उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है। मुजरिमीन के कब्जे से सर्जरी और मुजरिमाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होने वाली मेडिकल किट जब्त की गई है। तफसीलात के मुताबिक वीज़ा की एक्सपायरी के बाद गैर कानूनी तरीके से कुवैत में दाखिले के लिए फिंगरप्रिंट सर्जरी का काम अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस ने खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये जो कुवैत से जो लोग वापस आ रहे हैं, जिनका वीजा एक्सपायर हुआ करके जिनको वापस भेजा है और उनको वापस काम के लिए कुवैत जाना है या फिर वीजा के टर्म जो वायलेट किए करके वापस भेजा है, ऐसे लोगों को ये लोग कांटेक्ट करके उनके फिंगर टिप्स के ये लोग सर्जरी करते हैं और वो फिंगर टिप्स पे सर्जरी करने के बाद कुछ दिन तक स्टिचेस रहते हैं। स्टिचेस निकलने के बाद कुछ दिन तक सही से फिंगरप्रिंट्स नहीं आते। वो पीरियड में ये लोग अपना आइडेंटिटी चेंज करके दूसरे नाम दूसरा एड्रेस करके ये लोग दोबारा अपने आइडेंटिटी चेंज करके वीजा के लिए अप्लाई करते हैं और विदेश चले जाते हैं। इस गैंग ने जो है अभी तक हमने 4 लोगों को जो अरेस्ट किया, उसमें ये जो 2 लोग हैं कि जो लोग सर्जरी कर रहे हैं और 2 लोग जो पकड़े गए जिन्होंने ऑलरेडी अपने फिंगरप्रिंट पे सर्जरी की है और वो कुवैत से वापस आए हैं, उनको दोबारा कुवैत जाना, इसलिए ये तरीका उन्होंने अपनाया है। ये जो गैंग है 2 लोगों का जो सर्जरी करते हैं, इन्होंने इससे पहले राजस्थान में 2 लोगों को
केरला में 6 लोगों को और यहाँ आंध्र प्रदेश में 3 लोगों की उंगली पे इस तरह की सर्जरी करके उनसे 25,000 से ज़्यादा अमाउंट एक आदमी से इन्होंने लिए हैं। और इसमें से अभी तक कौन कौन कुवैत वापस चले गए उसके बारे में अभी हम लोग को इन्वेस्टिगेशन करना उसका बाकी है। दुनिया आज में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आदाब।